Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with today's news. What important news which are affecting our markets today? Dabur has received GST demand of 320 crores, which is looking at the size not much significant, not very big for Dabur. Siemens declared profits for last quarter. Profits were up by 45%. Margin also improved to 14.5%. And numbers were better than estimate. We might see some positive action on this stock. So as far as US-China trade is concerned, Donald Trump indicated that he would impose additional 10% tariff on goods from China. Obviously, anything which is not good for China would be good for India as far as foreign flows are concerned. So ये जो current fall था, one part of that was the money moving out of India, China looking much more attractive. So थोड़ा वो भी एक reason था, apart from our local valuations. In another research report, Morgan initiated buy on Hyundai India with 2418 target. CMP is 1880, so which indicate a good upside move on Hyundai. And listing के बाद stock lackluster था and started showing recovery. So जैसे ही listing day high निकलेगा, अपना IPO theory would be active. So as per IPO theory, whenever stock is above its listing day high, it is good for stock. Below listing day low, it's negative for stock. तो जैसे ही ये stock listing day का high cross कर जाएगा, that would be positive for the stock. So keep this stock on your radar. NTPC green card listing है and grey market premium indicate hardly 1 rupee premium. So expect some subdued listing. But yes, थोड़ा अगर stock negative होता है at right level, we can look at the entry. Again, today's candle would be very crucial. High and low of today's candle, how today's candle close, whether premium or discount. So it would be important to watch. M&M has launched its long range, is about to launch its long range electric SUV. So stock should be in some limelight. Insurance sector में news है, sources say that FDI cap in insurance to increase from 75% to 100%. And composite license might be allowed, which means that under single license they can operate general life insurance and everything under a single license. A big statement from Adani Group. Adani Group has clarified that there are no bribery charges against Gautam Adani or Sagar Adani and Vinit Adani. They have just been charged under a fraud and wire charges, not the bribery charges. Okay, so maybe charges they are the name in the report, but yes, charges are there, but they are saying they are not the bribery charges. Some other charges have been levied on them. So after decent थोड़ा रिकवरी अच्छा खासा आ गया था स्टॉक्स में, स्पेशली अंबुजा एंड ACC. अब जब ये न्यूज आया था, आई हैड डिस्कस दैट सम स्टॉक्स व्हिच हैव कोलेटरल डैमेज लाइक अंबुजा, ACC, PFC, तो आप ये स्टॉक पे फोकस कर सकते थे. ये मैंने जिस दिन स्टॉक्स गिरे थे उस दिन डिस्कस किया था. एटलीस्ट ये स्टॉक्स पे हम लोग फोकस कर सकते हैं फॉर एनी रिकवर एंड दे रिकवर्ड वेल. तो अगेन अगर कुछ भी फॉल आता है ये स्टॉक में, आई विल बी फोकसिंग ऑन अंबुजा, ACC एंड PFC. My breakout screener is showing these stocks: Granules, Apollo, Wipro. अब कल के लिस्ट में, ब्रेकआउट लिस्ट में एक स्टॉक आया था PEL, ओके, एंड विच वेंट अप बाय 8%. Yes guys, do check the chart of these stocks. अब लेट्स सी, निफ्टी पे एक व्यू लेते हैं, पोजिशनल व्यू. Guys, around this level I indicated that जो निफ्टी का मैंने आपको डेटा के साथ बताया था, जब भी मार्केट 20 पीरियड लोअर बैंड ऑन वीकली टेस्ट करता है, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, जो हमें देखने मिला. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नाउ व्हाट. नाउ द वे वी आर पॉइज्ड,
आई थिंक द वे मार्केट ने जो वॉल्यूम के साथ रिकवरी किया है, गैप के साथ ऊपर सस्टेन हुआ है, व्हाट आई से इज नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स आर 24,734 एंड 24,540. अब अगेन यहाँ पे एक मार्केट ने काफी रेजिस्टेंस लिया था, काफी दिन साइडवेज होने के बाद यहीं से गिरे थे हम लोग, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है. बट यस, आई एक्सपेक्ट दीज टू टारगेट, दिस टू लेवल टू बी टेस्टेड. अब पॉसिबिलिटी है मे बी थोड़ा सबड्यूट होने के बाद मार्केट माइट टेस्ट दिस गैप लेवल, गैप फिल करे एंड देन अगेन ऊपर मूव करना स्टार्ट हो. अब जब तक हम लोग 23,970 के नीचे बंद नहीं देते, तब तक आई assume this market to be buy on. So yes, any dip towards 23,970 level offers a good positional buy opportunity. अब चलिए ओआई फ्रंट पे देखते हैं. अब 2 दिन का स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा. अब एक्सपायरी इज क्लोज. कॉल राइटर्स वर एक्टिव yesterday. हेवी कॉल राइटिंग हुआ है अपसाइड पे, बट अब अगर हम लोग देखें मेजर कॉल राइटिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अपवर्ड्स ऑफ 24,400 से 25,000 तक. सो यहीं पे बड़ा राइटिंग हुआ है. एटीएम पे आई राइटिंग इज दैट बट नॉट दैट हैवी. तो आई एक्सपेक्ट एंड पुट साइड पे भी हमें 24,100 24,000 पे अच्छा राइटिंग देखने मिला है कल. सो यस, 24,100 से 24,000 का रेंज would act as a good support. Any bounce from there, 24,400 could be the target. So I expect for next 2 days there is possibility हम लोग पॉजिटिव रहे. सो पॉजिटिव अंडरटोन के साथ, बट अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस बना रहेगा. एंड वी हैव टू सी नाउ दिस डेटा इज अ इंडिकेशन ओनली. तो लाइव मार्केट में हमें देखना होता है ये डेटा पे क्या हो रहा है. अब सपोज मार्केट ऊपर चला गया, एक सडनली मार्केट ऊपर चला गया एंड दीज कॉल राइटर्स आर ट्रैप and they start covering. So that's the indication that now this level could also be breached. Some negative news, market started falling. These put writers are trapped. Okay, so it's not a hard coded thing that ये levels आपको एक इंडिकेशन देते हैं सिर्फ, बट आपको लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है. तो निफ्टी ओआई डेटा एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड 24,000 एक मेजर लेवल है. 24,300 24,400 24,500 पे अच्छा खासा एक राइज है. निफ्टी एक्सपेक्ट टू बी अ लिटिल रेंज बाउंड, बट आज बैंक निफ्टी का फायरी है. सो एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी में लाइक निफ्टी हायर कॉल रेटिंग हुआ है, बट कॉल राइटिंग जो है वो फार ओटीएम में कॉन्सेंट्रेटेड है. पीपल आर फेयरफुल टू राइट बिगर क्वांटिटी near to ATM. Okay, so this again indicate that still there are some call writers trapped. अभी देखो कल भी unwinding हुआ है calls में. Okay, so there are some call writers which are still trapped around this range. And today if market stays strong, there is possibility some covering आ सकता है. So yes, downside पे support है, but upside पे risk अभी तक है call writers की. So I cannot rule out, we cannot rule out the sudden up move in the bank nifty today. Okay, so keep this in mind that some writers are already trapped and accordingly आप अपना position. Now let's move to index view for today. तो positional view हमने डिस्कस कर लिया. अब चलते what intraday view on indices is poised. As I already said, based on data and based on move, still I maintain my long bias. And yesterday हमने कुछ long and short level दिए थे. So market whole day was in range only. किसी भी साइड हमें ट्रिगर नहीं मिला. So could have been a no trade zone. अब आज का लेवल है 24,248 के ऊपर. I'll try a long trade till 24,342 and on crossing of this level I'll carry my long till 24,440. तो yes, एक अपो 200 पॉइंट का 250 पॉइंट्स का देख सकते हैं लेवल के अबो. माय शॉर्ट बिलो लेवल इज 24,090. ये लेवल के मैं शॉर्ट ट्राई करूंगा till 23,950. बट टिल दिस लेवल इज नॉट ब्रीच, एनी डिप टुवर्ड्स हियर could be a
रिकवरी अपॉर्चुनिटी। एंड कल हमारा लेवल समवेयर अराउंड हियर था एंड वी हैव सीन ये लेवल पे आके मार्केट रिवर्स हुआ। सो सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी मिला था। सो अब मैं पुट राइट पे फोकस कर रहा हूँ। सो यस, वी कुड हैव मेड सम मनी, बट यस, आई विल ट्रेड टुडे विद दिस मैप। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है बिकॉज एज मैंने कहा डेटा में भी काफ़ी शॉर्ट्स है जिनका कवरिंग अभी बाकी है। तो माई स्ट्रॉन्ग अबो लेवल इज 52,340। ये लेवल के ऊपर मैं एक लॉन्ग ट्राई करूंगा टिल 52,570 एंड 52,800 टारगेट इन द माइंड। पीक बिलो लेवल इज 51,770। ये लेवल के नीचे पॉसिबल है एक टारगेट ऑफ 51,380। बट यस, एनी डिप टूवर्ड्स this level and recovery would be a good long opportunity. Bias here also is a long or bullish. अब कुछ stocks डिस्कस करते हैं। If you look at Biocon, okay, Biocon is almost at a range breakout. We can also call this a VCP pattern. अब एनी ब्रेकआउट अबो 352 353 लेवल 400 का लेवल पॉसिबल है। एंड अगर मैं सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करूं तो वी आर ऑलमोस्ट रिकवरिंग फ्रॉम अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। सो यस, बायोकॉन इज द दिस थिंग। ये अपना यस्टरडे का ब्रेकआउट में देयर वाज वन स्टॉक PEL। So there are two breakouts, pattern breakout भी है, and if you go on a weekly chart, there is a long range breakout of since August 22. Okay, so almost 2 years का breakout है PEL पे। City Union Bank again showing some recovery 182 के ऊपर। ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट आ जाएगा। अब मैंने कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था दैट FMCG इंडेक्स, नॉट डिस्कसिंग एनी स्टॉक बट जो इंडेक्स एज सच है, तो ETF में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई हैड डिस्कस्ड समवेयर अराउंड दिस रेंज। अब रीजन वाज एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ओवरसोल्ड है, एंड दिस इज अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग इन FMCG। नाउ ऑब्वियसली रीजन वाज अ ग्रोथ कंसर्न। नाउ मे बी 1-2 क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ वापस आ जाता है, वी सो सम डिसेंट ग्रोथ, तो यहाँ पे रिकवरी भी फास्ट आएगा। एंड यस, थोड़ा सेफ सेक्टर रहेगा ये। तो यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट कर सकते थे हम लोग, और एनी डिप नाउ यू नो वी कैन इन्वेस्ट इन द ETF फॉर मे बी FMCG सेक्टर पे सच आप अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू गाइस। अगेन वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग आवर वेबिनार ऑन हाउ टू रीड OI डेटा। मैं डेटा कैसे रीड करता हूँ, मैं लेवल्स कैसे अराइव कर सकता हूँ, अगर ये आपको सीखना है तो आप वो वेबिनार अटेंड कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो आपको डेली बेसिस पे जो प्री मार्केट रिपोर्ट है उसका अलर्ट आपको मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।